हेलो स्टूडेंट। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को सी प्लस प्लस के सेकंड चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सी प्लस प्लस का एक चैप्टर स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं हुआ होगा। जितना पढ़ा दिया दैट इज़ इनफ। अगर आपके पास कुछ और है तो आप पढ़िए। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर from point of view of your exams also. So what is class? क्लास क्या है? क्लास के बारे में अगर हम लोग डिफाइन करें तो we can define it in different way. यहाँ लिखता है class is a user defined data type to implement an abstract object. Abstract मतलब छुपा हुआ object. Abstract means to hide the details. A class is a combination of data and function. It's a very important point. Class एक user defined data type है. Class it's a combination of data and functions. क्लास को एक और तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. बहुत सारे ऑब्जेक्ट को मिला के हम लोग क्लास बनाते हैं. लाइक फ्रूट्स इज अ क्लास. लाइक मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑल आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट. Like animal is a class. Dog, rat, hen, all are object. Data is called as data members and function are called as member functions. Here we can see it right. Data class is a combination of data and function. Data is also called data member and function is called member functions. What is abstract data type? A data type that separates the logical properties from the implementation detail called abstract data type. A data type that separates the logical properties from implementation detail are called abstract data type, which is also called ADT. An abstract data type is a set of objects and an associated set of operation on those objects. Abstract data types support data abstractions, encapsulations, and data hiding. These are the examples of abstract data type, like Boolean, integer, array, stack, queue, tree, structure. A Boolean integer, array, built-in abstract data type Boolean integer, and as static queue, these are the user-defined data structures. Boolean operator like and or not, and values are true and false. Queue operations are create, dequeue, enqueue, and values are queue elements. यहाँ हम लोग क्यू और ट्री ये सब जो है हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे. तो these all are the example of abstract data structure. Class definitions, how you can define it. A class definition begin with the keyword class. Everything we can define it. Like a structure we can define with the keyword struct. जिस तरीके से स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट का यूज़ कर रहे थे वैसे ही क्लास को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्लास का यूज़ करेंगे. द बॉडी ऑफ ए क्लास इज कंटेंट विद इन ए सेट ऑफ ब्रेसेस. नोटिस द सेमीकोलन. द बॉडी ऑफ ए क्लास इज कंटेंट विद इन ए सेट ऑफ ब्रेसेस. This is an example. Class name, open and close with the semicolon. Any valid identifier. You can write the class name any name. And this is the class body, that is data member and member functions. With the body, the keyword private and public specify the access level of the member of the class. The default is private. क्लास में जब भी हम लोग डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हम लोग डिफाइन करेंगे
तो उसमें कुछ डेटा या मेंबर फंक्शन जो होगा उसको हम लोग अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड विजिबिलिटी मोड. दैट इज़ प्राइवेट है एंड पब्लिक है एंड प्रोटेक्टेड है. दैट इज़ विजिबिलिटी मोड. तो प्राइवेट मीन्स व्हाट, पब्लिक मीन्स व्हाट एंड प्रोटेक्टेड मीन्स व्हाट. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ में रहेगा, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन हो, वो प्राइवेट होगा. द डिफ़ॉल्ट इज़ प्राइवेट. Usually, the data member of a class are declared in the private sections of the class and the member function are in the public. क्लास एंड ऑब्जेक्ट का जब भी आप क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन होता है. डेटा मेंबर फंक्शन को हम लोग यूजुअली प्राइवेट में रखते हैं और मेंबर फंक्शन को पब्लिक में रखेंगे. अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट माना जाता है. बाय डिफ़ॉल्ट दैट विजिबिलिटी मोड इज़ प्राइवेट. Data member or member functions may be private or protected. Public means data member and member functions inside the class can be used as well as outside the class in different classes in the main function. जो भी डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन अगर हम पब्लिकली यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसके डेटा को या मेंबर फंक्शन को आप क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं. ग्लोबली जिसको आप कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन. तो डेटा मेंबर जो डिक्लेयर होगा पब्लिक, दैट मीन्स यू कैन एक्सेस इनसाइड द क्लास एज वेल एज फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. मेंबर फंक्शंस, it is specified public access outside the class directly. The public stuff is the interface. Private, accessible only to the member function of the class. Private member and methods are for the internal use only. Private means data member and member function cannot be used outside the class. कोई भी चीज़, चाहे वो डेटा मेंबर हो या मेंबर फंक्शन, अगर हम उसको आप डिक्लेयर कर रहे हैं प्राइवेट, दैट मीन्स यू कैन नॉट एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. प्रोटेक्टेड मीन्स द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन कैन बी यूज इन द सेम क्लास एंड इट्स डिराइव्ड क्लास एट वन लेवल, नॉट इन मेन फंक्शन. प्राइवेट फंक्शन को आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेक्टेड को आप एक लेवल तक आप डिराइव्ड क्लास में ले जा सकते हैं. तो बहुत अच्छे तरीके से जान लीजिए पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है. जो डेटा मेंबर फंक्शन पब्लिक होगा उसको क्लास के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं. जो प्राइवेट होगा बाहर क्लास से एक्सेस नहीं होगा. जो प्रोटेक्टेड होगा वो भी बाहर से एक्सेस नहीं होगा, लेकिन जब हम उसको इनहेरिट करेंगे तो एक लेवल तक हम उसको ले जा सकते हैं. ये एक डायग्राम से आपको दिखाया जा रहा है किस तरीके से काम करेगा. प्राइवेट है, ये पब्लिक है, पब्लिक बाहर चला गया, लेकिन पब्लिक के थ्रू हम प्राइवेट के डेटा को एक्सेस करेंगे. ये अपने कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए. अब बोलिए प्राइवेट को कैसे एक्सेस होगा, जब आप प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस कर देंगे तो आप एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक. क्लास के पब्लिक के थ्रू आप उस प्राइवेट को एक्सेस कीजिएगा और पब्लिक डेटा को हम बाहर से उसको कॉल करा देंगे. विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड, शुड अंडरस्टैंड. ये यहाँ पर एक दिया गया क्लास नेम, जिसमें जनरली हम लोग प्राइवेट और पब्लिक को बता रहे हैं. प्राइवेट मेंबर और मेथड्स, पब्लिक मेंबर और मेथड्स. इस तरीके से हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के डायग्राम जो स्ट्रक्चर है उसको हम बनाएंगे. जिस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया, एक्सेस किया, कॉल किया, उसी तरीके से यहाँ भी होगा. अभी हम आपको बता रहे हैं हाउ टू क्रिएट क्लास. विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन क्रिएट क्लास. उम्मीद करता हूँ कि ये नया चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा. अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए. थैंक यू.